सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक छोटा सा टास्क दिया जाए अपने सेशन में. सो आई एम शेयरिंग विद यू वन स्मॉल टास्क. देयर आर 12 स्टेटमेंट्स. So what you can do is, on a piece of paper, you please write the serial number. Not no need to write the statement. You write the serial number and then 5 point scale. That is not at all, rarely, sometimes, often, very often. So you have to answer all these statements as you actually are, rather than how you think you should be. जिस तरह से आप बिहेव करते हैं उसी तरह से करिए. आइडियल आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है. And don't worry if some statements or questions seem to score in the negative direction. Okay. So write down on a piece of paper the serial number of the statements. There are 12 statements, and then write the 5 point scale ranging from not at all, rarely, sometimes, often, very often. For example, this statement number 1 is, I am not sure of my ability to achieve the goals I set for myself. Whether not at all, rarely, sometimes, often, very often. Okay. So likewise, you have to respond to all these 12 statements. So you can take 7 to 8 minutes, and then we will do the scoring part. Now let us start its scoring. What you can do is, you please tick mark serial number 1, 7, 8, 10, and 11. So for these statements, give a score of 5 if you have responded to not at all, 4 to rarely, 3 to sometimes, 2 to often, and 1 to very often. Now, for the rest of the statements, you give a score of 1 to not at all, 2 to rarely, 3 to sometimes, 4 to often, 5 to very often. That is in reverse order. So let me give its interpretation. This small questionnaire was for how motivated you yourself are. That is, this is regarding self motivation. So if your scores range between 44 and 60, it means wonderful. You get things done and you don't let anything stand in your way. You make a conscious effort to stay self motivated, and you spend significant amount of time and effort on setting goals and acting to achieve those goals. And let me tell you that such people who got score between 44 and 60, they attract and inspire others with their success. So my suggestion is, try this and be aware that not everyone is as self-motivated as you are. Now coming to the range between 28 and 43, these people are also doing okay on self-motivation. They are not certainly failing. However, they could achieve much more. So to achieve what they want, try to increase the motivation factors in all areas of your life. यानी जहां पर आपका स्कोर 2 या 3 आया है, उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, या 1 आया है, ताकि वो धीरे धीरे 4 और 5 की तरफ चले जाए. So from this questionnaire, you will see that there are 4 factors which are very necessary to build the strongest levels of self motivation. One is self confidence and self efficacy. And for this particular factor, there are 4 statements. One is statement number 1, second is 2, third is 6, and fourth is 8. So 1, 2, 6, and 8 pertain to the factor on self confidence and self efficacy. The second factor is positive thinking and positive thinking about future. For this factor, again 4 statements are there. Statement serial number 4, 9, 11, and 12.
Then the third factor which is responsible for self-motivation is called as strong goals and focus. For this statement serial number 3 and 7. And then the fourth factor is motivating environment. The statements are 5 and 10. So this particular questionnaire, or you can say quiz, is about self-motivation. So self-motivation, you see, is the best form of motivation for oneself. It is an important element which is required to stimulate the desire in people for performance and giving their best at their work. Self motivation is actually the ability to motivate yourself, and this is an important skill. This component, that is self motivation, helps you to carry on despite various setbacks, and you can also seek for new opportunities. Self motivation, if you think over it, it is concerned with why you do what you do. Let me put it in simple words. It is a reason why you get to work, why you have your family, and why you enjoy traveling or reading. It is about knowing what you really want. Actually, the meaning of self motivation has been derived from the passion and an underlying desire to achieve something. And personal motivation is a very crucial driving factor in your professional, you can say, journey. So nothing can stand in your way if you are sure of what you want to do and how you want to do it. Let us now assume that right now it is quarter to 5 and you are looking forward to a relaxing evening. But there is just that one important call you have got to make and you have put it off 3 times today already. और आपको पता है कि जब तक मैं उस कॉल को रिप्लाई नहीं करता, वो रात भर मेरे माइंड में रहेगी। इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव योरसेल्फ द पुश यू नीड टू गेट ऑन। जैसे मान लीजिए कोई आप चैप्टर लिख रहे हैं, नहीं अभी मैं ठहर के लिखूंगा। या मान लीजिए आपने प्रपोजल बनानी है, कई बार आप दिन में उसको पोस्टपोन कर चुके हो। राइटिंग ए रिपोर्ट है, डीलिंग विद पाइल ऑफ फाइलिंग है कि ये फाइलिंग जो फाइल्स पड़ी हैं या पेपर्स पड़े हैं इनको मैं फाइलिंग करूं। सो ऐसी सिचुएशन में ऑल ऑफ अस नीड टू मोटिवेट आवरसेल्व्स समटाइम्स। होता है ना आप। सो दिस सेशन इज अबाउट सेल्फ मोटिवेशन एंड टू मोटिवेट अदर्स, क्योंकि हमने अदर्स को भी, अपने कुलीग्स को मोटिवेट करना है, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, घर में अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। यू नीड टू बी मोटिवेटेड फर्स्ट, तभी आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे। आप दूसरों को मोटिवेट नहीं करते, आप दूसरों को इंस्पायर करते हो कि ये गोल है, इसको ऐसे अचीव कर सकते हो। मोटिवेट आप खुद को करते हो। मोटिवेशन इज एक्चुअली कंसर्न विद व्हाई ऑफ बिहेवियर, द रीजन बिहाइंड पीपल पुटिंग इन एफर्ट। घर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा बेबी है, मदर उसको शाम को 5 बजे दूध का एक गिलास देती है कि बेटा दूध पी लो, वो नहीं पीता। ऑब्जर्व किया होगा। तो माँ कहती है बेटा मैं आज आपको चॉकलेट डाल के देती हूँ, वो पी लेता है। कल फिर आपको चॉकलेट मिलेगी, या तीसरे दिन पापा आएंगे आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है। वो ही ड्रिंक्स मिल्क ओनली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट रीइंफोर्सर। अब देखिए दूसरा पहलू, आप मार्केट में इवनिंग में जाते हैं, आपने तो उसको बोला कि भी मैं सॉफ्टी खिलाऊंगी, तो उसका ध्यान उसी शॉप की तरफ रहता है जहां पर वो मिल रही है। उस शॉप से आप आगे निकल जाते हो, वो बच्चा मम्मा को पल्लू खींच के कहता है मम्मा सॉफ्टी। माँ एक चांटा लगाती है, दांत खराब हो जाएंगे, गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। लेकिन अब उसको भी मालूम है कि भी मुझे यहाँ पर नेगोशिएट करना है। वो जमीन पे लेट जाता है। तो आप शर्म के मारे या दूसरों से ये सोच के कि भी बच्चे को, सो इसका मतलब है कि विदाउट टेलिंग हिम द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, आप उसको कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, क्लास में मान लीजिए मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ टुडे माय टॉपिक इज दिस। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बहुत सारे टीचर, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग, टुडे आई विल डिस्कस। तो स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होता है, सर दिस इज योर हेडेक, प्लीज गो एंड ब्रेक योर हेड। अब मैं इसको दूसरे तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उसको टेबल पे रखता हूँ। आई आस्क देम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इज इट एट रेस्ट और इज इट मूविंग। तो बच्चों ने देखा कि भाई ये तो रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग। मैं फैन को स्विच ऑन करता हूँ, व्हाट इज द पोजीशन दिस फैन नाउ, दे से इट इज इन मोशन। गुड। नाउ
this object is at rest, how we can put into motion? Definitely they will say, sir, by pushing or by pulling, that is by applying some force, it can be put into motion. Wonderful. तो आपने wonderful कह दिया. अब भाई एक अगला सवाल पूछते हो. Suppose you are sitting in a moving bus and the driver suddenly applies brakes. What happened? He says, we go forward. Good. And what happens when the driver suddenly starts the bus? He says, we go forward. Why are these you two? Now students are very much curious to know, because कल के लेक्चर में आपने रेस्ट, मोशन और फोर्स बताया था, आज आपने उसके आगे जाना है, तो आपने उसका जो प्री रिक्विजिट चाहिए थे नए टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो आपने असेस कर लिए. नाउ ही वांट्स टू नो मोर. Then you say that these are due to laws of inertia. So today in this session, we will learn laws of inertia. Now you go to board and write on the left hand side the concept of inertia, the kinds of inertia, that is inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, and then the application. So you will give them the roadmap. So this is how you are telling them the significance of learning a new topic. जब तक आप सिग्निफिकेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में बैठा है एंड ही वांट्स टू नो व्हाई ही इज सिटिंग इन द क्लासरूम. सो व्हाई पार्ट पहले आप बताएंगे, उसका मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा. So motivation is actually a process which leads the individual to attempt to satisfy some need. The term motivation has been taken from a Latin word, and that Latin word is movere, that is moving the classroom, moving the organization effectively to reach the goal. The term motivation refers to motives in action. Motive क्या होते हैं? Something that makes a person act in a particular way, and motives are expressions of our needs. The strength of each motive, pattern of motive influence one's perception of thoughts, action and words. यानी आपका जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है. अब मैं एक और बात बोलता हूँ. इन ए क्लासरूम एज ए टीचर यू वांट परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ क्लासरूम गोल, क्योंकि आप जब क्लास में एंटर करते हैं, यू एंटर विद सर्टेन सेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स. कि लर्निंग आउटकम क्या होता है कि भाई आज इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मेरे बच्चे में ये कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ. आई से आफ्टर दिस टॉपिक इज ओवर, माय पार्टिसिपेटिंग टीचर विल बी एबल टू डिफाइन मोटिवेशन, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, और दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन. They will be able to explain the approaches to motivation and what are the factors which affect motivation. They will be able to describe the techniques of motivation. So these are called as the learning outcome. Now for achieving performance or for attaining the learning outcome, the teacher wants that his students should possess ability for doing the work. Ability means knowledge, skill. But does that suffice? Can the ability or training of students alone bring good results or performance? Certainly not. So in order to have better performance in any classroom, laboratory or workshop, the student should have the willingness, or I would say eagerness, to exert high level of efforts to reach goals in addition to his or her ability to do that work. Again, a problem before the teacher, how to have his trained and able students who are encouraged, who are impelled towards classroom activities. And this is precisely what we mean by challenge of motivation. That is what motivates people and how people can be motivated. So ability is knowledge, aptitude, training, resources. Motivation is the desire and commitment. So all elements are necessary for high performance. Motivation is actually a stimulus, emotional stimulus that causes us to act in a particular way. It is a drive that encourages action or feelings, or you can say it is a process of igniting the spark in the individual to act. It can persuade, it can convince, it can propel a person into action. Now what are you seeing in this picture? One girl is trying to make the horse drink water, but वो अड़ के खड़ा हुआ है, वो पानी नहीं पी रहा. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. Well, you cannot force a horse to drink, but you can make a horse want to drink by giving it plenty of salt first. नमक खिला देंगे ना उसको प्यास लगेगी, पानी पिएगा. So this kind of reasoning can be applied to students. Students resist to learn. You cannot force them to learn.
but you can always make them want to learn by salting your teaching with techniques for creating student interest. सॉल्टिंग का मतलब चटपटा, यानी क्लासरूम में आपने इस तरह के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं। अब चटपटा वर्ड मैंने बताया, अगर मैं सामने आपके लेज का पैकेट या चिप्स का पैकेट रखूं, एकदम मुंह में पानी आता है ना। तो ये हमने अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि स्टूडेंट जो है वो अटेंटिव हो जाए। सो लेट मी शेयर विद यू सम ऑफ द रिसर्च स्टडीज. You will find enough literature in the net or journals, and researches which have been carried out on motivation indicates that people or the students learn more if they are motivated. There are few classroom problems, and teacher feel better about his or her teaching when students are motivated to learn, and definitely students will learn at or near their intellectual capacities. लेकिन जो स्टूडेंट्स पुअरली मोटिवेटेड होते हैं, दे आर लाइकली टू बी लर्निंग वेल बिलो देयर कैपेबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? We have to inspire. So motivation means what makes people put real effort and energy into what they do. It is getting people to do willingly and well those things which have to be done. Now the question is, can I be motivated by others? No. People motivate themselves. What you can do, you can inspire other person to motivate themselves. So people have to create environment that is self motivating. अब मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मोटिवेशन को एक साइकिल की फॉर्म में बताता हूँ, एंड यू विल एग्री विद मी दैट मोटिवेशन बिगिंस विद द नीड, मे बी वन नीड और नंबर ऑफ नीड्स दैट एग्जिस्ट विद इन अस ऑल, एंड इफ द नीड्स आर नॉट satisfied, we establish goal consciously or unconsciously and take or create action to achieve that goal. Let me say that if your need is very strong, like say you are very thirsty, you are very hungry, in that situation you will not be able to concentrate on anything else until that need to food or thirst is met to some extent or is taken care of. So we can say that motivation is the process of channelizing or channeling a person's inner drives so that he wants to accomplish the goals of the organization. Let me explain the process. As I told you that motivation begins with the need that exists within us all, and if the need is not satisfied, that will cause inner tension. It could be physiological tension or psychological tension, and the individual engages himself or herself in some action to reduce or relieve the tension. So the individual wants to do something that will satisfy the perceived need. And if the goal is achieved, the individual will usually engage in some form of constructive behavior. लेकिन कभी कभी आपने जैसे एक पाथ बनाया एंड आपका वो पाथ आपकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाया, तो उससे फ्रस्ट्रेशन कई बार होती है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आई नीड टू प्रिपेयर 2 or 3 ऑल्टरनेटिव प्लान्स, कि अगर एक फेल होता है तो दूसरा। सो इफ द गोल इज नॉट अचीव, द इंडिविजुअल हैज ए चॉइस ऑफ बिहेवियर। या तो पॉजिटिव करता रहेगा, कोई बात नहीं, या वो अपने को नेगेटिविटी में ले आएगा। So this is the process of motivation. Now coming to the kinds of motivation. One is the extrinsic motivation. Extrinsic motivation refers to the need to complete a task or perform an activity for the sake of a reward, privilege, or externally derived satisfaction. इट इज नॉट इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल। घर में फादर अपने बच्चे को बोलता है, बेटा अगर आपके सारे जो सब्जेक्ट में ए ग्रेड आएगा, आपको मैं बाइक दूंगा या आपको मैं 2000 रुपीज दूंगा फॉर सेलिब्रेशन। टीचर क्लासरूम में बच्चे को सवाल पूछता है, बच्चे ने आंसर दिया, टीचर सेज वंडरफुल, यू हैव सेड वेरी राइटली। So it is external. It is something which is administered by some external agent. घर में फादर मदर एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं और क्लासरूम में जो है टीचर। सो दैट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अदर कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स आर, आपने क्लासरूम में बच्चे को फ्री टाइम दे दिया कि भाई ये बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप प्लीज मेरे पास आइए, कभी भी मेरे से कुछ समझ सकते हो, या आपने अपनी जो नोट शेयर कर लिए। सो द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज कंसीव्ड एज ए स्टेट व्हेन द इंडिविजुअल does not work of his own accord, but he or she carries out the task under the influence of some external motivational factors. It is not inherent, मैंने बोला, it is something which is administered or imposed on the task or the individual by some external agent.
And this is when you are motivated by external factors that are given or controlled by others, for example, by salary in the company or by praise. Our jobs are usually based on extrinsic motivation, although there will be some intrinsic motivation involved if you enjoy aspects of what you do. मार्केट में या आपके पास कई शॉप्स हैं जो लॉयल्टी कार्ड, बोनसेस या आपको जो है रिवार्ड पॉइंट्स देते हैं, मनी, स्पोर्ट्स में ट्रॉफी हैं या आपने चीयर अप किया, ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है. नाउ कमिंग टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन. दिस इज नथिंग बट समथिंग दैट हैज बीन इंटरनलाइज्ड. इट इज द ड्राइव टू डू थिंग्स फॉर देयर ओन सेक और फॉर सेल्फ रिवॉर्ड. सो intrinsic motivation is considered to be a state which forces the individual to do something or learn something for personal satisfaction or for broadening personal experience. मैं उदाहरण देता हूँ. फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. आपको एक मैथमेटिक्स का सवाल आपने सॉल्व किया, यू फील वेरी हैप्पी, या आप प्राइड फील करते हैं कि आपने किसी वर्ड को करेक्टली स्पेल आउट कर दिया. यानी आपको, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मुझे हैप्पीनेस मिली है. सो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. मनी आपको किसी स्टेज तक आपको मोटिवेट करती है, नो डाउट, मनी भी है मोटिवेटर. लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको मनी मोटिवेट नहीं करती, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ काम करते हैं. पैसा ही हर चीज नहीं होती. अब फॉर एग्जांपल ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैं बोल रहा हूँ. मोस्ट हॉबीज, जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, या कुछ लोग शाम को जरूर बैडमिंटन खेलना आधे घंटे के लिए. तो ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, खुद खुद बंदा इंजॉय करता है, फिट रहता है. सो वी डू देम बिकॉज वी इंजॉय देम एंड नॉट बिकॉज वी हैव टू डू. That is intrinsic motivation. So employees are likely to be intrinsically motivated if they attribute their targets to internal factors that they can control. They believe they can be effective agents in reaching desired goals, or they are interested in learning a new skill. जैसे मान लीजिए आपने कोटा से दिल्ली जाना है और आप जो है ट्रेन से जा रहे हैं, आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले ट्रेन स्टेशन में पहुंच गए. आपने देखा होगा कुछ रेलवे स्टेशन में कुछ लोग अपनी बुक पढ़ रहे हैं, उनको इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है. कुछ लोग जो है वो एक दूसरे को जाता आते देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. इसी तरह कुछ लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख लेते हैं, ट्रेन में जाते हुए वो पढ़ते हैं, because they want to spend their time judiciously. They enjoy. Now coming to approaches to motivation. You see, motivation can be regarded as a function of a person's resistance. Student resist करते हैं learning के लिए. तो let me share with you the approaches. I'm not going to discuss the theories of motivation क्योंकि आपने एग्जाम नहीं देना, तो मैं सिंपल शब्दों में वो अप्रोचेस आपके साथ शेयर करूंगा. एक तो है बिहेवियरल अप्रोच विच एम्फेसाइजेस द रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेटर लाइक प्रेज, रिवार्ड. अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया और टीचर ने कुछ नहीं बोला, तो स्टूडेंट के मन में एक फ्रस्ट्रेशन सी आएगी, मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दिया और टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इतना खड़ूस है. लेकिन अगर मैं कहता हूं, रमेश जी, you have said very rightly, you are just wonderful, that will reinforce him to answer question next time. So behavioral perspective. Now this is based upon psychological principle, that is law of effect. That law states that behavior which is accompanied by satisfaction or reward on the part of individual is likely to be permanent or repeated than the behavior which is accompanied by dissatisfaction or failure. देखो ना, आपको जिस काम को करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है या कुछ रिवार्ड मिलता है, वो चीज आप दोबारा रिपीट करते हैं या करना चाहते हैं, एज कंपेयर टू वो बिहेवियर जिसमें आपको नुकसान हुआ है. इजंट इट? सो जितना आप क्लासरूम में या अपने कुलीग को या खुद को भी अपने पीठ पे बैठ करें, यस आई हैव डन इट, गुड जॉब, आई हैव डन, आई कैन डू दिस. सो एक्सटेंसिव मोटिवेशन. लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, यूज मॉडरेशन, डू नॉट ओवरडू इट. क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि बच्चा जो है दूध नहीं पीता, आपने आज उसको लालच दे दिया कि बॉर्नविटा डालेंगे, कल दे दिया चॉकलेट देंगे, अगले दिन दे दिया जो है वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा. तो आपने उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बताना है, कुछ स्टोरी बतानी है. इसी तरह क्लासरूम में भी आप उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताएं, व्हाई वी वांट टू लर्न दिस टॉपिक, फिर उस टॉपिक पे आए.
कभी भी अपना टॉपिक जो है इस तरह से मत शुरू कीजिए कि आज मेरा टॉपिक ये है, आज मैं ये डिस्कस करूंगा। एक उदाहरण मैं और देता हूं। अभी मैंने आपको इनर्शिया का उदाहरण दिया। एक मैं छोटी क्लास का एक और 5वीं 6ठी क्लास का एक और उदाहरण देता हूं। मैं क्लास में आया, स्टूडेंट्स वांट टू नो व्हाई, व्हाट इज द टॉपिक। मैंने बोला बर्फ से पानी कैसे बनता है। तो एक बच्चे ने कहा सर उसको हीट करेंगे, वो मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ शाबाश, बहुत अच्छा दिया उत्तर। फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि पानी से फिर बर्फ कैसे बनती है। एक बच्चा कहता है सर उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाएगी कुछ देर बाद। गुड। एक और सवाल पूछता हूँ, दूध से दही कैसे बनता है। तो बच्चों ने माँ को देखा हुआ है दूध से दही कैसे बनाती है, कि दूध को कुछ गर्म करते हैं, उसमें हल्का सा खट्टा डालते हैं और कुछ देर के लिए उसको रखते हैं तो वो दही में कन्वर्ट हो। वंडरफुल। नाउ दही से दोबारा दूध कैसे बनता है। तो बच्चे कहते हैं सर नहीं होता, नहीं बन सकता। तो मेरा सवाल अगला आता है कि पानी का बर्फ बनना और बर्फ का फिर से पानी बन जाना, लेकिन दूध का दही तो बनना, दही से दोबारा दूध ना बनना, ऐसा क्यों होता है। नाउ स्टूडेंट्स आर वेरी मच क्यूरियस, they are excited to know why. Then you say that these are due to physical and chemical changes taking place in the matter. So today in this session we will learn physical and chemical changes. Never say I will teach. क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को भी बहुत सारी नॉलेज है, और वो आज मोबाइल भी लेके आया हुआ है और मोबाइल में इंटरनेट है, और टीचर कुछ बोलता भी है तो साथ ही बच्चे जो है एक नई इन्फॉर्मेशन। इट मींस मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद भी लर्न कर रहा हूं, कोई बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ऐड कर रहा है। सो नेवर से आई विल टीच, वी विल से टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एंड नाउ आप बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड पे टॉपिक लिखेंगे, सेंटर में लेफ्ट हैंड साइड में उसका ओवरव्यू देंगे कि आप ये 3 चीजें हम आज इसमें स्टडी करें। सो डू नॉट ओवरडू इट, यूज मॉडरेशन। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी इवेंट दैट लीड्स टू ए रिस्पॉन्स। क्लासरूम में देखिए टेबल है एक स्टिमुलस, चेयर है, लैपटॉप पड़ा है, फैन है, एसी है। तो जब आप इनको देखते हो आप अपने माइंड में एक रिस्पॉन्स बनाते हो। जिसको भी देखा आपने रिस्पॉन्स बनाया। आप मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे प्रति आपने एक रिस्पॉन्स तैयार किया। तो सेकंड कंपोनेंट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? ए यूनिट ऑफ बिहेवियर दैट फॉलोज द स्टिमुलस। आपका टोटल बिहेवियर नहीं है, आप एट ए टाइम यू आर ऑब्जर्विंग मेनी थिंग्स, तो आप छोटा छोटा रिस्पॉन्स माइंड में बनाते जा रहे हैं। एंड थर्ड क्या है? रीइंफोर्समेंट, यानी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद नतीजा क्या हुआ। जैसे आप स्टिमुलस है क्वेश्चन, बच्चे ने आंसर दिया, रिस्पॉन्स हो गया, और मैंने कहा वंडरफुल, शाबाश, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सो दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस। अब मैं इसको कंबाइन करता हूं, that if a particular stimulus response pair is accompanied by a desirable consequence, then the stimulus involved will prompt the same response in future। जो मैंने कहना चाहता था कि वो बिहेवियर जिसके बाद सेटिस्फेक्शन या रिवार्ड मिलता है उस बिहेवियर को हम रिपीट करना चाहेंगे, राइट, या वो परमानेंट होता है। और स्टिमुलस, ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इसको हम लर्निंग भी बोलते हैं। नाउ देयर आर 4 टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द बिहेवियर। तो सबसे पहले हम जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ चलेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? A consequence that encourages the repetition of a given behavior is said to be positively reinforced। यानी जो एक्सटर्नल मोटिवेटर आप देते हो तो वो बिहेवियर रिपीट होता है। सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुई? इसको हम कुछ ऑथर्स ने इसको अवॉइडेंस लर्निंग भी बोला है। इट इन्वॉल्व्स गिविंग ए पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बाय एग्जिबिटिंग ए डिजायरेबल बिहेवियर। इट टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल लर्न्स टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न टू ड्राइव सेफली इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट। सो ये जो है यूजली टेक्स प्लेस व्हेन द पीयर्स और द सीनियर्स क्रिटिसाइज ए पर्सन्स एक्शन और टास्क। उदाहरण के तौर पर एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट की, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन इस बार की असाइनमेंट में उसकी कुछ कमियां थी। तो मैं उसको बोलता हूं कि भी रमेश जी, यू हैव बीन सबमिटिंग वेरी गुड असाइनमेंट्स इन द पास्ट, लेकिन इस असाइनमेंट में कुछ स्पेलिंग एरर रह गए हैं। तो मैंने उसको फीडबैक दिया
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया। अब ये जो लड़का है ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट करने से पहले वो स्पेल चेक इनकॉर्पोरेट करेगा टू अवॉइड फ्यूचर क्रिटिसिज्म। इसका मतलब हमने उसको फीडबैक देना, और लेकिन फीडबैक जो है वो अटैक नहीं करना इंडिविजुअल को। You see, even a good person can do some poor work. The idea is to point out the work, not the person. जैसे मैंने बोला, यार this work is typical of you, short on facts and badly presented. मतलब यार क्या है, जैसी तुम्हारी शक्ल वैसा काम करके लेके आया हो, वेरी पुअर। तो ऐसी फीडबैक कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये जो दो टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दीज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। अब तीसरा है एक्सटिंक्शन। Extinction involves providing no positive consequence or removing previously provided positive consequence as a result of his or her undesirable behavior. सिंपल शब्दों में मैं क्लासरूम में एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है बाय क्लोजिंग द पेन, ओपनिंग द पेन, टिक टिक करके आवाज लगा रहा है। तो मैं उसकी तरफ देखा भी है लेकिन वो फिर भी कर रहा है, तो मैंने क्या किया, उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया, उसको इग्नोर कर दिया। उसको बुरा महसूस हो। कई बार आप अपने पर्सनल रिलेशन में भी कई बार आपने ये फीलिंग ऑब्जर्व की होगी। आपने अपने फ्रेंड को बोला मैं वहां था सामने, तुमने मुझे इग्नोर मारा, आई फेल्ट वेरी बैड। सो ये भी एक सजा है। देन अगर वो फिर भी नहीं मानता, वो अपना बिहेवियर नहीं मॉडिफाई करता, then the fourth is punishment. Punishment involves providing a negative consequence as a result of his or her undesirable behavior. So through punishment, you can correct the improper behavior of your colleagues or your students by providing negative consequences. आप उनको privilege नहीं देते, आप उनको जो है उसकी फ्रीडम को जो है वो रिड्यूस कर देते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो पब्लिक में दें। जो पनिशमेंट है इट शुड बी गिवन इन प्राइवेट, क्योंकि आप क्लासरूम में सबके सामने अगर किसी को पनिश कर रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जो लास्ट वाली दो टेक्निक्स है, एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट, these can be used to decrease the frequency of undesirable behavior. Now coming to the second approach, that is the cognitive approach. वो behavioral approach थी, this is cognitive approach. This is related with intrinsic motivation. Cognitive interpretation of motivation emphasize intrinsic motivation, and intrinsic motivators lead the individual to engage in the behavior because of the inherent value of doing so. आप उसी एक्टिविटी में खुद को इंक्लूड करते हैं जिसमें उनको आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है या आप इंजॉय करते हैं। दैट इज फोर्सिंग द इंडिविजुअल टू डू समथिंग or to learn something for personal satisfaction. Example मैंने आपको दे दिए, for example feeling of satisfaction that working on some project produces, or feeling of pride that you have spelled some word correctly. So the more the person is motivated by intrinsic factor, the less motivation the senior or the teacher has to provide. So people who have strong intrinsic motivational orientation are likely to prefer challenging work rather than easy work, because they find incentive to work for their own satisfaction rather than working to please the other individual or achieve good performance. So they are also prepared to attempt solution to problem. They are independent. वो dependent नहीं है, अपने आप ही initiative लेते हैं. They are proactive. The third approach is the humanistic approach. According to this approach, when a person is actually motivated, he or she is in a state of tension and is ready to undertake a course of action which is consistent with his or her feelings. And Maslow has arranged the human needs in the form of a hierarchy. And at the base of the hierarchy, he has kept the physiological needs, a need for food, need for water, need for air, need for sleep, need for entertainment. So these are very crucial needs, which are because these are necessary for person's survival, physiological. Then arises the safety needs, the need for protection against danger or deprivation of physiological need for safety, stability, order, safe working environment, job security, periodic salary increases, adequate benefits, etc. Then comes social need,
because person doesn't want to work alone, he wants to be in the company of his friends. So अगर आप टीम में काम देते हो, ग्रुप में काम देते हो, the person feels very happy, he or she needs to feel accepted, receive affection and be a part of group. जैसे ही सोशल नीड फुलफिल होती है, यानी आपने अपने ग्रुप में काम करने के लिए स्टूडेंट को मौका दिया, देन देयर सेल्फ एस्टीम नीड अराइजेस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आंसर दिया, आपने शाबाशी दी, सबके सामने बोला कि रमेश यू हैव आंसर द क्वेश्चन वेरी करेक्टली, लेकिन एज ए टीचर you have to ask question first, then wait for a moment, let your students raise their hands। ये नहीं कि हर बार उसी एक बच्चे से ही आंसर पूछना है। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया आप उससे भी पूछिए, हो सकता है वो जो है क्वेश्चन ना समझ पाया हो, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को 2 3 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक करके पूछेंगे। आइडिया इज टू गिव हिम और हर सम हिंट, और वो आंसर देता है, मान लीजिए उसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है लेकिन आंसर कुछ हद तक ठीक है, देन यू से शाबाश, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। की के बाद आप उस आंसर को प्रॉपर शेप में बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि हमने सब बच्चों की सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो भी फुलफिल कराने में उनकी मदद करनी है। जैसे ये नीड फुलफिल होती है, देन द हायर नीड इन द हायरार्की गेट्स एक्टिवेटेड, दैट इज द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज the need to develop skills or potentialities to become what one believes one is capable of becoming. That is the tendency of the individual to become in actuality what he or she is potentially। अब अब्राहम मैस्लो ने ये जो अप्रोच दी थी, इसने बोला था जैसे ही लोअर लेवल नीड फुलफिल होती है, हायर नीड इन दी हायरार्की गेट्स एक्टिवेटेड, उसके बाद ये सीक्वेंस में चलेंगी। लेकिन if you look around in the society you will find many people have attained self actualization need। बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे, हाँ इवन पीछे बिस्मिल्लाह खान जी का दिखाया था, he has attained self actualization, लेकिन टीवी में ये भी दिखाया था उसका घर टूटा हुआ है, उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, यानी लोअर ऑर्डर। तो ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई, लेकिन इस थ्योरी ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद और भी कई सारी अप्रोचेस जो हैं वो डेवलप हुई हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाता ना। मेरे सिंपल एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, whether we ever fully actualize, whether we ever fully actualize, I think the answer lies in the individual। People actualize at different levels। Some people for example are satisfied with a bachelor's degree from a local college, लेकिन कुछ आप में से ऐसे भी हैं जिनको नीड है मास्टर्स करने की या डॉक्टरेट करने की फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। Likewise, some individuals reach their potential at a simple job। दूसरा कहता नो, मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जो फलां ऑर्गेनाइजेशन में या लेवल 10 में नहीं मैं ज्वाइन करता, या मैं ये क्वालिफिकेशन अक्वायर को, ये मेरा एक किस्म का एंट्री पॉइंट है, लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है। सो some self-actualized individuals tend to be creative and will thrive on feedback from others। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स रखना चाहूंगा। जैसे हमने एक टास्क किया था, तो आपने बहुत सारे ह्यूमन सारे प्रॉब्लम्स बताए थे, प्रॉब्लम्स विद ह्यूमन रिलेशन एसोसिएटेड विद कोलीग्स, देन स्टूडेंट्स एंड फैमिली, मैंने बहुत सारे नोट कर लिए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे टीचर से फैक्टर्स पूछे कि why you are not motivated, why your students are not motivated, they have given me number of factors, तो मैंने उनको कंसोलिडेट कर दिया and I'll now present before you the factors that demotivate many of us। One is unfair criticism, negative criticism, नेगेटिव सेल्फ टॉक। बंदा खुद ही कहता है यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मेरे से तो हो नहीं सकता। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आप खड़े होके जोर से बोले यस आई कैन डू इट, यस आई कैन। आप 10 बार बोलेंगे ना, आपके बाजू में रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि हमें इंस्पिरेशन नहीं मिली। सो नेवर इंडल्ज योरसेल्फ इन नेगेटिव सेल्फ टॉक। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, जैसे एचओडी ने एक टीचर को दूसरे टीचर की प्रेजेंस में फायर किया। रिवार्डिंग द नॉन परफॉर्मर, दिस इज ऑल्सो डीमोटिवेटिंग फैक्टर। फियर ऑफ फेल्यूर, आपके पास आइडिया है लेकिन आपको डर लगता है कि यार अगर मैं इस तरीके से काम किया तो गड़बड़ ना हो जाए, तो
एज ए एचओडी आप उस इंडिविजुअल को जो है सपोर्ट कीजिए। यस यू कैन नो सक्सेस, हमेशा आपने एक काम किया, आपको यू गॉट दी सक्सेस, इससे आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। कॉम्प्लेसेंट होने से क्या होगा, आप प्लान नहीं करते। अब देखिए मैंने इस लेक्चर को पता नहीं 500 बार दिया होगा, लेकिन आपके सामने डिलीवर करने से पहले रात को मैंने एटलीस्ट 45 मिनट स्पेंड किए कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे टैकल करना है। आप एज ए सेंटर स्टूडेंट आप अपने कॉलेज में एग्जाम करवाते हैं और आपने कई बार करवा लिया, लेकिन इस बार आपने प्लानिंग नहीं करी, यू मे फेस प्रॉब्लम। इट मीन्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कम, ताकि आप जो है कॉम्प्लेसेंट ना हो। लैक ऑफ डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एचओडी ने एक लेटर था, उसमें लिखा डॉक्टर कुसुम शर्मा प्लीज डिस्कस, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने एक लेटर था जो बाहर से आया और डॉक्टर कुसुम शर्मा को मार्क कर दिया प्लीज डिस्कस या प्लीज स्पीक। अब डॉक्टर शर्मा थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या बोलना है, क्या स्पीक करना है, मुझे नहीं पता, तो वो अपनी ड्रॉर में रख लेती हैं। 2-3 दिन के बाद वो जाती हैं कि सर आपने मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया था। पहले तो वो फायर करते हैं, कुसुम जी आप अब आए हो, उसी समय क्यों नहीं आए? तो कुसुम जी कहते हैं सर आपने उसमें कोई टाइम नहीं लिखा था, तो क्योंकि मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, चलो मैं उसको अच्छा अच्छा अब आप आए हो, आपने ये किया वो किया, सर आपने कुछ कहा ही नहीं था। देखो ना, बिना मतलब के आपने उनको फायर किया, शी बिकेम अनहैप्पी। लेकिन अगर मैं लिखता कुसुम जी मैं आपके पास ये प्रपोजल भेज रहा हूँ, आप इसको स्टडी करके कंपैरेटिव बना के कल सुबह 11 बजे मेरे पास फर्दर डिस्कशन के लिए आना, तो कितना टाइम सेव हो जाता, कितनी एनर्जी सेव हो जाती। इसी तरह मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, लैक ऑफ मेजरेबल, आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब students are confused because they know many things, and different students they decide the scope of the answer to this question differently. एक स्टूडेंट कहता है चलो मैं तीनों लॉज की स्टेटमेंट दे देता हूँ, दूसरा कहता है मैं तीनों लॉज को एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करता हूँ, एक और बच्चा है वो दो एग्जाम्पल देता है। तो एज ए टीचर मैंने देखा जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा लिखा था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, तो मेरा जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स हो गया, तो मैंने उसको पूरे नंबर दे दिए, बाकियों के नंबर काटने शुरू कर दिए। तो जिसके कटे वो आता है बच्चा कि सर आपने मेरे को नंबर कम क्यों दिए? आप कहते हो कि उसने 2 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया, वो कहता है सर इसमें तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं। ही इज राइट, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? हमारा क्वेश्चन होना चाहिए डिस्क्राइब ईच ऑफ 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद वन एग्जाम। अब सबको स्कोप क्लियर है, तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एम्बिगुअस हैं, आपने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स, आप फोर्स के बारे में क्या जानते हो? अथाह सागर भाई, कुछ भी लिख दो। क्या मैं डेफिनेशन लिखूं, क्या मैं ऐसा यूनिट लिखूं? यू हैव टू स्पेसिफाई। आपने बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेमीकंडक्टर, नाउ सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा चैप्टर है, पूरी बुक है, द स्टूडेंट डजंट नो वेयर टू बिगिन, व्हाट टू पुट एंड वेयर टू एंड। तो हमें स्कोप जो है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियर करना है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल नहीं है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है दे बिकम डीमोटिवेटेड। देन कम्स लो सेल्फ एस्टीम, बच्चा कहता है, सोचता है कि भी मैं अगर आंसर दूंगा तो सब बच्चे हंसेंगे। आपने ये चीज रिमूव करनी है। आपने काम कितने सारे हैं, आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया। क्या आप लोग हर रोज शाम को घर जाने से पहले टू डू लिस्ट फॉर टुमारो बनाते हैं? कितने लोग बनाते हैं आप में से? कुछ लोग तो माइंड में बनाते होंगे, सोचते हैं बट कर नहीं पाते। हाँ कर नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने कागज पे नहीं लिखा हुआ। अगर शाम को जाने से पहले आप 8-10 काम लिख लें कि भी कल मैंने ये करने हैं, और या मान लीजिए आपने उसमें पर्सनल काम भी लिख लिया कि मुझे जो है अपने मोबाइल को रिचार्ज करना है या मुझे बिजली का बिल भरना है, वो भी डाल दीजिए। और मैंने प्लान करना है कि कितने बजे निकलना है। बच्चे ने सुबह आते आते कह दिया कि पापा मेरे लिए ये बुक भी ले आना, आपने प्लान में रखा नहीं, शाम को घर पहुंच जाते हो फिर याद आता है। और वो जो बुक परचेज करनी थी वो आपके इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल पास थी, आपको फिर 10 किलोमीटर के लिए जाना पड़ता है, या कई बार पैसे नहीं होते जेब में उतने। तो इसका मतलब आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो आप रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट कागज के ऊपर बनाएं। सुबह जाते सर जो काम आपने अगर आप हेड हो, जिसको असाइन करने हैं वो दे दिए, ठीक है, और जो खुद करने हैं वो शुरू कर दिए। 2-3 घंटे बाद उसको मॉनिटर करें कितना काम रह गया, कितना हो गया, मतलब हो गया है। और शाम को जाने से पहले जो काम हो गया उसको काट दें,
और जो रहता है उसको कंटिन्यू करें और नया डाल दीजिए। इन दिस वे यू विल बिकम एन ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, कोई मोटिवेशन के लिए टेबलेट नहीं मिलती कि आपके मुंह में डाली जाए और आप फुदक फुदक के काम करो। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो। सो आपने अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कभी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, देन हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होती है? दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय रियल कन्विक्शन। दूसरे शब्द में बोलते हैं इनसिंसियरिटी बाय वर्च्यू ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव क्वालिटीज और बिलीव्स दैट यू डू नॉट रियली हैव। अब मैं आपके सामने कुछ शेयर करूंगा खुद को मोटिवेट करने की कौन कौन सी जो है टेक्निक्स हो सकती हैं जो आप कर सकते हो। पहली बात तो है यू कैन मेक द टास्क मोर इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग। सुबह भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, काम तो करना है, हंस के भी करना है, रो के भी करना है। क्लास लेनी है क्योंकि हम टीचर हैं। We should enter the class with an attitude that I am going to enjoy my student and not with an attitude, oh today again there is a class, यार क्या क्लास आज फिर है, ऐसा नहीं। And you provide your own extrinsic rewards। कैसे? भाई आज ये मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, आप अपने कुलीग को बोलते हो उसके बाद हम ना आज दोपहर को कॉफी लेंगे सब लोग। इस तरह घर में भी आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि आज ना हमारा ये टारगेट है कि भाई इस रूम को हमने ऑर्गेनाइज करना है, सेट करना है, और उसके बाद हम जो है लंच करने के लिए बाहर जाएंगे अपने रिवार्ड, या आज सॉफ्टी खाएंगे ये काम कर खत्म होने। तो कुछ जो है वो हमें एंजॉय करना है। सो यूजिंग a combination of both is often the most effective way to motivate yourself. So you have to find further intrinsic and extrinsic motivation to get those undesirable tasks done. So let me share with you some of the tactics that you can use to motivate yourself. पहला तो है you have to change your attitude and approach undesirable task. उदाहरण के तौर पर आपने अपनी फाइलिंग कैबिनेट को रीऑर्गेनाइज करना है। इट मे नॉट बी मोटिवेटिंग इन इटसेल्फ, लेकिन जब आपको लगता है कि इसको करने के बाद मेरा जो हर कागज है जब भी मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा या फाइल में से मिल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे बॉस हुआ करते थे, शायद मैंने सुबह भी उनका नाम लिया था, प्रोफेसर बीएम धीर। तो उन्होंने मुझे एक, हमारे यहाँ पर CDAC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए कोई हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था। तो हमने रिप्लाई भेज दिया, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि सुनील दत्त जी आप ना एक फाइल लगा लीजिए, फाइल चालू कर लीजिए और बाहर लिख दीजिए प्रपोजल फॉर CDAC। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर अभी तो हमने प्रपोजल का रिप्लाई, प्रपोजल बना के भेजा, उनका कौन सा अभी कोई एक्सेप्टेंस आ गया, कंफर्मेशन तो आई नहीं है, जब आ जाएगी वो मैं कर लूंगा। तो मुझे उन्होंने एक सेंटेंस बोला, सुनील जी ये फाइल फोल्डर 5 रुपए का है, आप अगर इसको इस फाइल फोल्डर में नहीं रखेंगे तो हफ्ते बाद ये कागज आपको नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल सही है। इसी तरह मुझे अपने घर में भी कुछ पर्सनल फाइलें बनानी है, जैसे इनकम टैक्स फाइल, प्रोविडेंट फंड फाइल, या मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया या पानी का बिल वो फाइल में लगा दिए। तो मुझे उसी दिन उसी समय लगाने हैं जब वो मेरे पास आ गया। तो ये मुझे अपनी जो एटीट्यूड है या अप्रोच है ये मुझे चेंज करना। अच्छा मान लीजिए अलमारी, फाइलिंग कैबिनेट है, उसमें 4 शेल्फ हैं, आपको लगता है यार तो बड़ा दुविधा वाला, तो क्यों नहीं आप एट ए टाइम आज सिर्फ एक ही शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दें, अगले दिन दूसरी कर दें, यानी टुकड़ों में बांट के वो काम किया जा सकता है, वो भी एक अप्रोच है। देन थिंक अबाउट व्हाई यू डू व्हाट यू डू। सेट स्मार्ट गोल्स। सेट स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला डिफाइन फोर्स, व्हाट इज फोर्स नहीं, व्हाट इज फोर्स स्पेसिफिक नहीं है। डिफाइन फोर्स है तो उसको मेजर करना आसान है। अगर मैं व्हाट इज फोर्स पूछता हूँ तो वो मेजर करना आसान नहीं है। और जो भी टास्क आप अपने कुलीग को दे रहे हो वो उसकी रीच में हो, अटेनेबल हो, उसकी नीड के रेलेवेंट हो, उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, और उसमें टाइम का कंपोनेंट डाल दीजिए कि भी कल तक ये इसको फिनिश करना है।
अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो इट विल नेवर एंड, और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। सो ब्रेक योर टास्क डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, जो मैंने अभी आपको बताया। ट्राई टू बिल्ड इन अकाउंटेबिलिटी, यू कैन, आप अपने कुलीग्स को बताते हो या अपने सीनियर को बताइए अपने टास्क के बारे में, एंड इट मोटिवेट्स यू इफ यू नो दैट समवन एल्स इज एक्सपेक्टिंग। आप उनसे आशा रख सकते हो कि भाई आप मेरे से क्या किस तरह का काम एक्सपेक्ट करते हो। या मैंने काम कंप्लीट कर दिया, अपने बॉस के पास लेके गया, सर एनी फीडबैक, कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे दीजिए। क्योंकि जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगी, मेरे में जो है डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैंने इसीलिए उस दिन कहा था कि जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है, आप उनको एक कागज दे दीजिए बच्चों को, और बोलिए अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना। 6 महीने के सेमेस्टर में आपको मेरी टीचिंग में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, प्लीज फील फ्री एंड फ्रैंक एंड गिव योर सजेशन। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ बताएंगे जो आप करते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बोलते बोलते इजंट इट 10 बार बोलता है, या ओके ओके ओके, या ऐसे सिर पे हाथ लगा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर सिर पे हाथ लगा लिया। हाँ, या मान लीजिए एक चौक जो है वो उसके टुकड़े किए, उसको हाथों में खेल रहा है, कभी इधर हाथ में डाला कभी इधर। तो ये बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जो जेस्चर्स है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एक टाइम ऐसा रिसोर्स है जो भगवान ने सबको समान मात्रा में दिया है, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सबको एक समान मात्रा में दिया गया है। देखो पैसा किसी के पास कम है, ज्यादा है, सेहत अच्छी है, बुरी है, लेकिन टाइम 24 आवर्स अ डे और 365 डेज अ ईयर, एवरीबॉडी गेट्स दिस मच टाइम। और जिसने इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया वो टाटा बिरला बन गए, क्योंकि उनके पास भी जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, टाटा ने भी या बिरला ने भी, उनके पास पहले से असेट्स नहीं थे। हो सकता है नेगेटिव में स्टार्ट किया हो, लेकिन उन्होंने टाइम को स्मार्टली मैनेज किया। सो टाइम मैनेजमेंट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, पोस्टपोन नहीं कीजिए आज के काम को कल। जब आप मोटिवेशन लेवल पे लो होते हैं ना, तो आपकी टेंडेंसी होती है टू पोस्टपोन थिंग्स ऑन टू नेक्स्ट डे। कई बार जो है वो टास्क इंटरेस्टिंग नहीं है, टास्क कॉम्प्लेक्स नेचर का है, समझ नहीं आ रही कैसे किया जाए। तो अगर ऐसा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज इंस्पिरेशन कम्स ओनली वंस यू हैव स्टार्टेड एंड नॉट बिफोर दैट। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, देन अपने आप को रिवार्ड दीजिए व्हेन यू कंप्लीट a task. Scare yourself with the negative consequence of not doing it. So if not doing the task is going to get you in trouble with your boss, please focus on this and scare yourself into doing it. Love yourself, because you can love and respect others only if you love and respect yourself. Have faith in your capability. यू कैन डू स्वॉट एनालिसिस कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। ये वीकनेस ओवर करने के लिए ये नया लेक्चरर आया है, मुझे इससे कुछ सीखना पड़ेगा, तो मुझे हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लर्निंग की चाह है तो मैं छोटे बच्चे से भी सीखूंगा। सो हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन डे ड्रीमिंग। इसका मतलब आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए। सो कंट्रोल कीजिए खुद के ऊपर एंड डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। फेल्यूर के बारे में परवाह मत कीजिए, अदरवाइज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज हो जाएगा। सो आप कोई भी टास्क करने से पहले एंटीसिपेट कीजिए कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और अकॉर्डिंगली मैं क्या प्लान बना सकता हूँ। जैसे क्लासरूम में जाने से पहले मैं एंटीसिपेट करूंगी कौन से क्वेश्चन मेरे से पूछे जा सकते हैं, तो मुझे क्या आंसर देना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है आपने तैयारी भी बहुत बढ़िया करी, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपके पास नहीं था, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। एक तरीका तो है कि भी आप उस क्वेश्चन को रीएड्रेस करेंगे सारे स्टूडेंट्स को, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। तो इतने में आप अपने माइंड में उसका आंसर ढूंढते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने आधा कच्चा आंसर दे दिया, आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया। अगर नहीं होता, यू कैन एडमिट ऑनेस्टली, गुड क्वेश्चन, यू स्टडी एट होम, आई विल ऑल्सो स्टडी एट होम, सो टुमारो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। और जब अगले दिन आप आते हैं तो सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी है, रोल है, वो उस क्वेश्चन को डिस्कस करना है।
लेकिन ये हर रोज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आज फिर क्वेश्चन आया, आज फिर हमने कह दिया भैया कल घर से पढ़ूंगा, आप भी पढ़ के आना। क्योंकि अगर रोज रोज ऐसा होगा तो इन दैट वे यू विल लूज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर स्टूडेंट। उनका इंटरेस्ट आप लूज कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज कर देंगे। एंड कीप लर्निंग, खुद को मोटिवेट करने के लिए रीड एंड ट्राई टू टेक इन एवरीथिंग यू कैन। द मोर यू लर्न, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम इन इनिशिएटिंग एनी प्रोजेक्ट। अब ये देखिए एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी है? तो पुरानी वाला जो कौवा था उसको प्यास लगी, तो उसने एक घड़ा देखा और उसमें कंकर डालने शुरू किए ताकि पानी ऊपर आ जाए। लेकिन जो आज का कौवा है उसने टेक्नोलॉजी, यानी उसने खुद को अपग्रेड किया और उसने स्ट्रॉ यूज करके पानी को पिया और उड़ गया। सो खुद दूसरों की भी हेल्प कीजिए, और कभी कभी आप अपने कुलीग के साथ उसकी टास्क को स्वैप कर सकते हो और उसकी जगह यानी उसका काम किया और आपने जो है अपना काम उसको दे दिया। और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव लोगों के साथ घिरे हुई रहिए, ठीक है? कुछ लोग आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। कोई अच्छा काम हो रहा है वो कहेगा क्या बड़ा तीर मार लिया तुमने। वो हर अच्छे काम में भी बुरा निकालते हैं, लेकिन हमें हर नेगेटिव थॉट में भी एक पॉजिटिव जो है वो आइडेंटिफाई करना है। एंड हमेशा जो है एक अकम्पलिशमेंट लॉग बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करें, एक टेबल बना लें वर्ड फाइल में, डेट और दूसरे कॉलम में जो आज के दिन की एक्टिविटीज हुई हैं, जो आज आपने सारा कुछ किया वो सब कुछ लिख दीजिए 2-3 लाइनों में। और मैं आपको बताऊं ये चीज लिखने से आपको अगले साल एसीआर लिखने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब आपने इसको आज की एक्टिविटी नहीं लिखी तो अगले साल आपको जब एसीआर लिखनी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कौन कौन से काम जो किए हैं। सो ये मेरा एक सजेशन है। तो मैं अभी सेशन को यहीं पर जो है वो रोकता हूँ।